कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग ठीक होंगे। आज हम पढ़ेंगे कीपिंग सेफ। रेडी स्टेडी स्टार्ट। Accidents can occur at any time. We should be ready to deal with such situations. There are some important phone numbers. We should be ready to deal with such situations. There are some important phone numbers which you should always have with you. Find and write these. ये आप खुद से करेंगे. Concepts to know. Safety at home, safety outside the home and swimming pool, etc. First aid. देखिए, Deepak and Rahul were heading to a shopping complex. They forgot to fasten their seat belts and were listening to music at a very high volume. While driving at a distance, their car had an accident resulting in significant damages and they had to pay a heavy fine. They were also very embarrassed by the incident. Thus, if we are careful and alert, accidents can be prevented. We should follow safety rules everywhere. Safety rules are differ for different places. We should know and follow them in all times. In this chapter, we will learn more about indoor and outdoor safety. Also, some first aid tips will be discussed. देखिए, यहाँ पे एक इंसिडेंट बताया हुआ है राहुल और दीपक का। राहुल और दीपक जो है वो दोनों मिलकर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जा रहे थे अपनी कार में और उन्होंने सीट बेल्ट्स नहीं पहनी हुई थी और वो लाउड म्यूजिक सुन रहे थे कार में, जिसकी वजह से उनका एक छोटा सा एक्सीडेंट हो जाता है और उनकी कार में बहुत सारे डैमेजेस आते हैं, जिसकी वजह से उन्हें एक हैवी फाइन भी पे करना पड़ता है। तो इस तरीके के इंसिडेंट्स ना हो आपके साथ, इसलिए आप लोगों को कुछ सेफ्टी रूल्स फॉलो करने चाहिए, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम वही सब डिस्कस करेंगे कि डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट तरीके के सेफ्टी रूल्स होते हैं और वो क्या क्या होते हैं। चलिए पढ़ते हैं। क्रेजी फॉर एक्टिविटी, यस, सॉल्व द सेफ्टी रिडल्स बिलो टू डिस्कवर द इम्पोर्टेंट सेफ्टी टिप्स। आई हैव ब्राइट एंड हॉट white flames. I play, keep things away, or I may cause dismay. What I am. I am worn on your head, protect it. I will keep you safe with your climb a hill. What do you wear? ये आप खुद से करेंगे। Safety at home. The safest place where we feel no accidents can happen in our home. But accidents can take place anywhere, in the kitchen, in the bathroom, or at any other place when we are careless and not alert. We can avoid accidents in safety rules are followed. Let's learn about safety rules that should be followed at various places in home. देखिए, हमारा घर जो होता है वो हमारे लिए सेफेस्ट प्लेस है, ठीक है, लेकिन घर में भी तो इंसिडेंट्स हो सकते हैं, एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। जैसे कि वो इंसिडेंट्स तो आपके साथ कहीं पे भी हो सकते हैं, वो किचन, बाथरूम या फिर कोई भी जगह हो सकती है अगर आप केयरलेस हैं और रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं, सेफ्टी रूल्स को, ठीक है। अब इस तरीके के एक्सीडेंट्स को अवॉइड करने के लिए आपको सेफ्टी रूल्स फॉलो करने चाहिए। तो चलिए आइए उनके बारे में पढ़ते हैं। सेफ्टी इन द किचन। किचन में किस तरीके से आप सेफ रह सकते हैं। हैंडल शार्प ऑब्जेक्ट्स लाइक नाइव्स एंड सीजर्स वेरी केयरफुली। डू नॉट प्ले विद देम। Do not play with knife, matchbox, etc. If you have to use a knife or a matchbox, use these in the presence of an adult. देखिए, आपको अगर नाइव्स या सीजर्स का यूज़ करना है तो उसे प्रॉपर वे में यूज़ करना है, उनके साथ खेलना नहीं है, ठीक है। और कभी भी नाइफ या मैच बॉक्स के साथ खेलना नहीं है। अगर आपको इस तरीके की चीज़ें यूज़ करनी है तो आपको अपने से बड़े की हेल्प लेनी है, ठीक है। सिंथेटिक क्लोथ्स कैच फायर इजीली। अवॉइड वियरिंग दीज वाइल वर्किंग इन द किचन। इंस्टेड वेयर कॉटन क्लोथ्स। यूज ओवन ग्लोव्स एंड टोंग्स to handle hot objects. Do not wear synthetic clothes while cooking as they catch fire easily. Do not try to light the gas stove by yourself. Be careful when lighting something with matches. Always throw the light matchstick after putting it off directly into the dustbin. If something spills on the floor, then clean it quickly, otherwise somebody might fall. Switch off the gas stoves when not in use. Check gas pipes to avoid leakages. Make use of cotton cloths and tongs to handle hot objects. देखिए, अब जो सिंथेटिक क्लोथ्स हैं वो फायर को इजीली कैच करते हैं, इसलिए जब भी आप किचन में काम कर रहे हैं तो आप सिंथेटिक क्लोथ्स ना पहने बल्कि कॉटन क्लोथ्स पहने। कभी भी आप
कोई भी गर्म चीज़ ले रहे हैं, उठा रहे हैं, तो टोंग्स मतलब कि चिमटे, उनका यूज़ करें। ठीक है। अगर आपको गैस को लाइट करना है तो किसी बड़े की हेल्प लें। मैच स्टिक का अगर आप यूज़ कर रहे हैं और यूज़ किया, आपने उसे बुझाया, तो उसको नॉर्मली ऐसे ही नहीं फेंकना है, उसको डस्टबिन में फेंकना है प्रॉपर्ली। ठीक है। अगर आपकी वजह से कोई चीज़, लिक्विड चीज़ नीचे फ्लोर पे गिर गई है तो उसे तुरंत साफ करें, वरना कोई फिसल के गिर सकता है। ठीक है। ऑल मेडिसिन एंड पॉइजन शुड बी लेबल्ड प्रॉपर्ली एंड केप्ट आउट ऑफ रीच ऑफ चिल्ड्रन। डू नॉट टेक मेडिसिन विदाउट आस्किंग एन एडल्ट। देखिए, कोई भी मेडिसिन है या फिर पॉइजन है, उसे आपके पेरेंट्स को प्रॉपर्ली लेबल करके आपसे दूर रखना चाहिए ताकि वो आपके हाथ ना आ सके। ठीक है। कभी भी ऐसी चीज़ों को आपको हाथ नहीं लगाना है। आपको हमेशा आपके एडल्ट से पूछना है मेडिसिन लेने से पहले, डायरेक्टली नहीं लेनी है। ओके। सेफ्टी इन द बाथरूम। Clean the bathroom floor and keep it dry after use. Do not leave soap bar on the floor. Always keep it in the soap dish. Do not touch any electric equipment with the wet hands. Do not spill liquid detergents and shampoos on the floor. The floor gets slippery and someone might slip. Do not play with razors, blades and scissors in the father's shaving kit. देखिए, बाथरूम में जब भी आप नहाने जा रहे हैं और आपने बाथरूम यूज़ किया है तो उसके फ्लोर को हमेशा प्रॉपरली क्लीन करके ही वहाँ से हटिए, वो हमेशा ड्राई होना चाहिए। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आपको कभी भी सोप बार को नॉर्मली फ्लोर पे नहीं छोड़ना है, उसको सोप डिश में ही रखना है। ठीक है। गीले हाथों से कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस आपको नहीं टच करना है, इससे आपको करंट लग सकता है। ठीक है। कभी भी डिटर्जेंट, शैम्पू या ऐसी तरीके की चीज़ें फ्लोर पर नहीं छोड़नी है, कोई भी उससे फिसल के गिर सकता है। ठीक है। रेजर्स, ब्लेड्स और सीजर्स जैसी चीज़ों से नहीं खेलना है। आपके फादर की शेविंग किट में होती हैं ये सब, इनसे नहीं खेलना है। While using electrical gadgets, do not put your finger in the electric sockets. Do not go close to heaters, table fans and other electrical gadgets when they are switched on. Touch any electrical switch or gadget with dry hands. Wear dry rubber slippers before using an electrical device. देखिए, अपने फिंगर्स को इलेक्ट्रिकल सॉकेट्स में नहीं डालना है। आप किसी भी हीटर, टेबल फैन, ऐसी इलेक्ट्रिकल गैजेट्स के आसपास आपको नहीं जाना है, आपको चोट लग सकती है। ड्राई हैंड से ही आपको इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को टच करना है। ठीक है। रबर स्लीपर्स पहननी है आपको अगर कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस आप यूज़ कर रहे हैं तो। While using stairs, windows and doors, do not slide down on the railings of a staircase. Do not run up and down the staircase. It may make you trip and you may fall down. Never bang the windows or doors while shutting or opening. You may hurt your fingers or hand. देखिए, स्टेयर्स, विंडोज और डोर्स यूज करते हुए आपको क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए। कभी भी स्टेयर केस पे आपको भागना नहीं है, रेलिंग पे आपको भागना नहीं है। ठीक है। एक दूसरे को धक्का नहीं देना है वहाँ पे। विंडोज, डोर्स ओपन करते हुए आपको ध्यान रखना है कहीं आपकी फिंगर ना आ जाए उसमें। ठीक है। सेफ्टी आउटसाइड द होम एंड स्विमिंग पूल एक्सेट्रा। घर के बाहर स्विमिंग पूल में या फिर प्लेग्राउंड में कहीं पे भी आपको क्या सेफ्टीज रखनी है, चलिए देखते हैं। To be safe outside our home, we should be extra careful and alert. We should follow these safety rules. Use a life jacket when swimming on a beach. Do not dive in areas that are not marked for diving. Use a swimming tube if you are not a perfect swimmer while swimming in a pool. Ensure that an adult is present while you go for swimming. Never play on the roads. Do not accept anything, especially eatables offered by the strangers. Never take a lift from them. देखिए, घर के बाहर अगर हैं आप तो आपको क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी चाहिए। अगर आप स्विमिंग के लिए जा रहे हैं बीच पर तो लाइफ जैकेट पहने। ठीक है। उन एरियाज पे ना जाएं जहाँ पे डाइविंग अलाउड नहीं है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर आप अभी बिगनर हैं, अभी आप सीख रहे हैं, तो पहली चीज़ आपको ट्यूब वेयर करनी है और दूसरी चीज़ कोई एडल्ट आपके पास होना ही चाहिए। ठीक है। रोड्स पर कभी नहीं खेलना चाहिए और किसी भी स्ट्रेंजर से कोई भी चीज़, ईटेबल्स नहीं लेनी चाहिए और ना ही उनके साथ कहीं जाना चाहिए, ना ही उनसे बात करनी चाहिए। ओके। सेफ्टी एट स्कूल। यूज द स्टेयरकेस केयरफुली. Wait for your turn to get or in the get down from the school bus. Do not run in class or corridors. Do not climb over the classroom furniture. You may fall down and hurt yourself. Never throw objects like pencil, pen, ruler and duster on anyone.
दे कैन कोज सर्व इंजरीज। देखिए, स्कूल में स्टेयरकेस पे आपको केयरफुली चलना है, ठीक है, और स्कूल बस से हमेशा अपनी टर्न आने पर ही चढ़ना है या फिर उतरना है, ठीक है। क्लास में आपको या फिर कॉरिडोर्स में भागना नहीं है, ठीक है। क्लासरूम के फर्नीचर पे नहीं चढ़ना है आपको, अगर आप चढ़ के उससे जंप करोगे तो आपको चोट लग सकती है, ठीक है। क्लासरूम के कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं जैसे कि पेंसिल हो गया, रबर हो गया, पेन हो गया, डस्टर हो गया, इस तरीके की चीज़ों से नहीं खेलना है, किसी को चोट लग सकती है, ठीक है। सेफ्टी ऑन रोड, इफ देयर इज नो जेब्रा क्रॉसिंग, लुक both ways carefully before crossing the road. Cross the road only at zebra crossing. Do not ride your cycle on a busy road. Always walk on the footpath. देखिए, रोड पर जब भी आप रोड क्रॉस कर रहे हैं हमेशा जेब्रा क्रॉसिंग का ही यूज करना चाहिए। अगर उस एरिया में जेब्रा क्रॉसिंग नहीं है तो आपको बोथ वेज देखना है और उसके बाद आपको रोड को क्रॉस करना है, ठीक है। बिजी रोड पर साइकिलिंग नहीं करनी है और हमेशा फुटपाथ पर ही चलना है। Safety at playground. Never tease stray animals. Always wait for your turn on the slide or swing. Do not fight with other playmates. Always play in the playground or in a park. It is very dangerous to play on the road. देखिए, जब आप बाहर खेलने जाते हैं प्लेग्राउंड में, वहाँ के आसपास के जो एनिमल्स हैं उन्हें कभी भी टीज नहीं करना है, वो आपको काट सकते हैं, ठीक है। हमेशा अपनी टर्न का वेट करना है, स्लाइड या स्विंग किसी पे भी अगर आपको झूलना है तो, ठीक है। अपने प्लेमेट्स के साथ आपको लड़ाई नहीं करनी है और प्लेग्राउंड में ही आपको खेलना है, रोड्स पर आपको नहीं खेलना है, वो आपके लिए डेंजरस हो सकता है। क्रेजी फॉर एक्टिविटी, यस, गेस द मीनिंग ऑफ द रोड साइंस, ये आप खुद से करेंगे। फर्स्ट एड, First aid is the immediate basic treatment given to an injured person before the doctor arrives. It is given to an injured to avoid any complications and save his life. There are certain rules to be calm and make the injured person comfortable. Loosen tight-fitting clothes. Make sure the injured person gets enough fresh air and breathe. Each type of injury, wound or cut requires different treatments. देखिए, फर्स्ट एड होता है इमीडिएट हेल्प होती है किसी भी इंजर्ड पर्सन के लिए। जब तक डॉक्टर नहीं आ रहे हैं तब तक आप फर्स्ट एड बॉक्स से उस जिसको भी चोट लगी है, पेशेंट जो भी है, उसकी हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि उस पर्सन को आपको क्या क्या करना चाहिए और उस पर्सन को काम करना चाहिए जिसको चोट लगी है, कंफर्टेबल बनाओ, उसके क्लोथ्स अगर टाइट हैं तो उन्हें थोड़ा सा खोल दो, बटन्स को, जिप्स को थोड़ा सा खोल दो, ठीक है। और जो भी इंजर्ड पर्सन है उसको प्रॉपर फ्रेश एयर मिल रही है, इस चीज़ का ध्यान आप रखें, ठीक है। डिफरेंट इंजरीज, कोई कट है, वाउंड है, इन सारी डिफरेंट इंजरीज के डिफरेंट टाइप्स के इलाज होते हैं, ठीक है। जनरल अवेयरनेस, डॉक्टर्स गिव tetanus injection for any injury caused by sharp and dirty objects. This prevents the wound from getting infected. देखिए, डॉक्टर्स जो हैं वो टिटनस इंजेक्शन होता है वो देते हैं उसको अगर किसी को भी शार्प ऑब्जेक्ट से या फिर डर्टी ऑब्जेक्ट से चोट लगी है तो उसको टिटनस इंजेक्शन लगाया जाता है। इसकी वजह से इन्फेक्शन रुकता है बॉडी में, ठीक है। फर्स्ट एड टिप्स फॉर कट एंड वाउंड्स, wash your hand properly before treating cut or wound. Clean the area with an antiseptic solution. For a minor cut, put an adhesive bandage. For a deeper cut, apply an antiseptic cream and then place a cotton swab or a gauze on it. Tie a bandage on it tightly so that the bleeding stops. To avoid any infections, do not let the wound come in contact with dirt, dust and flies. देखिए, किसी को चोट लगी है तो आपको किस तरीके से फर्स्ट एड अप्लाई करनी है। सबसे पहले आपको अपने हैंड्स को प्रॉपरली वॉश करना है, ठीक है। उसके बाद आपको जिस एरिया में भी चोट लगी है उस एरिया में एंटीसेप्टिक अप्लाई करनी है, ठीक है। कोई माइनर कट है तो आपको एडिसेसिव, एक बैंडेज होती है एडिसिव, वो अप्लाई करनी है। और अगर डीप कट है तो आपको एंटीसेप्टिक क्रीम लगानी है, फिर उस पर कॉटन लगानी है, फिर उस पर ग्वेज लगाना है, ठीक है। उसके बाद उसको बैंडेज से प्रॉपरली बांधना है, ठीक है। आपको ये मेक श्योर करना है कि वो ब्लीडिंग जहाँ से भी हो रही है वो ब्लीडिंग रुक जाए, ब्लीडिंग ना हो, ठीक है। इन्फेक्शंस अवॉइड करने के लिए आप ये ध्यान रखें कि जहाँ पे चोट लगी है वो एरिया डर्ट के कॉन्टैक्ट में ना आए, ठीक है। If the person is badly hurt, call the doctor immediately. Meanwhile,
Make the person lie down on the wounded part slightly elevated. Wrap some ice cubes in the towel and put it on the wound to stop bleeding. After the bleeding stops, apply an antiseptic cream and tie a bandage. देखिए, अगर किसी को बहुत ज़्यादा ही चोट लगी है और डॉक्टर नहीं आए हैं तो आपको डॉक्टर को आने का वेट करना है और उस जिसको भी चोट लगी है, जहां पर भी चोट लगी है, उस एरिया को क्लीन करने के बाद उस पे आइस क्यूब्स रखनी है जिसकी वजह से ब्लीडिंग होना रुक जाए। ठीक है, ऐसा करने के बाद आपको एंटीसेप्टिक क्रीम लगानी है और फिर उसको बैंडेज से कवर करना है। ओके, फर्स्ट एड टिप्स फॉर बर्न्स। अगर किसी का हाथ जल जाता है तो आपको क्या क्या फर्स्ट एड टिप्स फॉलो करनी है, देखिए। इफ देयर इज अ माइनर बर्न, वॉश द बर्न एरिया विद कोल्ड वाटर। एन आइस पैक ऑन द बर्न विल हेल्प रिवील द इरिटेशन। अप्लाई एन एंटीसेप्टिक क्रीम और कैलामाइन लोशन ऑन द बर्न्ड एरिया। लीव द वाउंड ओपन एंड डू नॉट बैंडेज इट। If the clothes have caught fire, wrap the person in blanket and roll him over to put out the fire. Remove the clothes if they are not sticking. Apply ointment and go to the hospital. देखिए, अगर छोटा मोटा माइनर बर्न है तो उसके हाथ में अगर कहीं पे भी बर्न है तो कोल्ड वाटर से उसे वॉश करें। ठीक है, कोल्ड वाटर से। और अगर ज़्यादा बर्न है तो उसकी इरिटेशन को रोकने के लिए आप आइस का भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, एंटीसेप्टिक क्रीम लगा सकते हैं, कैलामाइन लोशन लगा सकते हैं। और जो वाउंड है जहाँ पे चोट लगी है उसको बैंडेज नहीं लगाना है, उसको ओपन रखना है। ठीक है, अगर क्लोथ्स में फायर लगी है, कपड़े जल गए हैं और क्लोथ स्टिक कर रहे हैं तो आपको प्रॉपरली एक ब्लैंकेट लेना है और उस ब्लैंकेट से उस पर्सन को कवर करना है। ठीक है, और अगर क्लोथ्स में नहीं लगी है आग तो वो क्लोथ्स आप निकाल दें और उसके बाद उस पेशेंट को हॉस्पिटल लेके जाएं। ठीक है, डिसीजंस मेकिंग स्किल्स। डू नॉट अप्लाई बटर और ऑयल ऑन द बर्न्ड एरिया एज इट मे गेट इन्फेक्टेड। डू नॉट टच ब्लिस्टर्स एज दे मे बर्स्ट। टेक मेडिकल हेल्प फॉर मेजर बर्न्स। देखिए, जो इन्फेक्टेड एरिया है वहां पे बटर या फिर ऑयल अप्लाई नहीं करना है, मेडिकल हेल्प लेनी है। ठीक है, फर्स्ट एड टिप्स फॉर फेंटिंग। फेंटिंग का मतलब होता है बेहोश होना। ठीक है, क्या क्या फर्स्ट एड टिप्स यूज करनी चाहिए। इफ अ पर्सन फेंट्स देन इमीडिएटली मेक हिम लाई डाउन विद द हेड लोअर देन द बॉडी। दिस इंक्रीजेस द ब्लड सप्लाई टू द ब्रेन। डू नॉट क्राउड अराउंड हिम। अलाउ इन फ्लो ऑफ फ्रेश एयर। डू नॉट पैनिक एंड बी काम while giving first aid to an injured person. Make the patient comfortable and then call the doctor immediately. देखिए, अगर कोई बेहोश हो गया है तो आपको उस पर्सन के जो लेग्स है उस एरिया से आपको उसे उठाना है ताकि जो ब्लड का फ्लो है वो ब्रेन की तरफ जाए। ठीक है, इससे जो पेशेंट है वो कंफर्ट में आता है। उसके आसपास भीड़ जमा नहीं करनी है। आपको ये ध्यान रखना है कि जो फ्रेश एयर है उस तक इजीली जा सके। पैनिक नहीं करना है, काम रहना है। फर्स्ट एड टिप्स फॉर इंसेक्ट बाइट्स। Get the visible sitting removed by the doctor. Apply calamine lotion on the affected area for relief. Apply a paste of baking soda with an antiseptic cream on the affected area in case of a bee or wasp. Apply vinegar or kerosene to relieve burning sensation. Go to the doctor immediately. अगर किसी को इंसेक्ट बाइट किसी इंसेक्ट ने किसी को बाइट किया है तो आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, आपको उसे जो भी स्टिंग लगी है, काटने पे एक डंक लगता है। ठीक है, वो जो डंक लगा है उसको निकालना है और उसके बाद उसे डॉक्टर के पास लेके जाना है। कैलामाइन लोशन लगा सकते हैं आप जहाँ पे भी काटा है। ठीक है, आप पेस्ट लगा सकते हैं बेकिंग सोडा का या फिर एंटीसेप्टिक क्रीम लगा सकते हैं। ठीक है, स्पेशली जब किसी वैस्प ने या बी ने उसे काटा है। ठीक है, विनेगर या कैरोसिन का यूज भी कर सकते हैं। ओके, बर्निंग सेंसेशन पे नोज ब्लीडिंग। नोज ब्लीडिंग इज कॉमन इन समर। फिर से करते हैं नोज ब्लीडिंग इज कॉमन इन समर। Make the person sit on chair with the head leaning forward and prevent him/her from swallowing blood. Apply an ice pack on the nose to stop the bleeding quickly. Press both nostrils for a short while. Ask the person to breathe through his/her mouth. Do not let the victim blow his/her nose for some time. देखिए, समर में नोज ब्लीडिंग एक कॉमन चीज है। ठीक है,
अगर किसी का नोज जो है वो ब्लीड कर रहा है तो उसको आपको चेयर पे बिठाना है और उसके हेड को पीछे की तरफ बेंड कर देना है और उसको बोलना है कि आपको अपने माउथ से ब्रीथ करना है, ठीक है। आपको अपने जो नोज से आपको ब्लड आ रहा है उसको स्वेलो नहीं करना है, ठीक है। वो अपने आप पीछे की तरफ जाएगा, आपको स्वेलो नहीं करना है, आपको अपने माउथ से ब्रीथ करना है, ठीक है। आप क्या कर सकते हैं, दोनों नोस्ट्रिल्स को आप प्रेस कर सकते हैं उस पर्सन के और उसके बाद उसको बोल सकते हैं, इस तरह प्रेस कर सकते हैं दोनों नोस्ट्रिल्स को और उसके बाद आप उसको बोल सकते हैं कि आप अपने माउथ से ही सांस लो, ठीक है। क्रेजी फॉर एक्टिविटी, यस। Make your own first aid box. You can use an old tin box, cover it with a white paper and put a red cross on it. Put in it an antiseptic lotion, an antiseptic cream, a sticky tape, a bandage, scissors, cotton pads, ORS and some commonly used medicines. ये आप खुद से करेंगे. Read at a glance. Accidents can happen anywhere and at any time. Accidents can be avoided by being careful and by following safety rules. We should be careful and alert to avoid accidents. We should follow safety rules everywhere, at home and outside of home. Safety rules need to be followed all the time, at home, on the road, in school, etc. Before treating an injured person, we should keep in mind some first aid tips. We should not panic and remain calm while giving first aid to an injured person. Key terms to know. Accident. An unpleasant event, especially in a vehicle that happens unexpectedly and causes injury or damage. First aid. Immediate help given to the injured person before the doctor arrives. Safety. फीलिंग ऑफ वेलबींग। तो बच्चों, आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। अब इसके एक्सरसाइज की प्रैक्टिस आप खुद से करेंगे।